example, the street vendors, small retail shops, the daily wage earners, they are facing a lot many problems during this pandemic situation, because they are the daily wage earners. As we know, the unorganized sector contributes in the huge portion in the Indian economy. The street vendors are being forcefully evicted across the city, leaving them without any source of income to support them through the uncertain days ahead. So they are facing a lot many problems during this pandemic situation. Though many business organization is facing problems during the COVID-19, but there are also some business organization or business hubs, such as the grocery shop, the medical shop, which has contributed in the economy of the country during this pandemic situation. Now, information technology. Information technology plays a very significant role during the pandemic situation. The growth of the information technology has been increasing rapidly. The opportunity for the organization lie institutionalization of digital ways of thinking. All the business organizations are now thinking in a digital way. The globalized era has come and the digital era has come. Rethinking the traditional employee engagement models and techniques, redesigning the performance management processes, and restructuring the benefits and the policies of the business organization. They're organizing a virtual learning in the business organization so that they can adopt the changes in a better way. The computer-assisted instruction delivers the training material directly to the trainees in the business organization through a computer terminal in an interactive format. The distance training, the video conference has plays a very important role. Today's the business firms are using the various forms of distance learning methods for promoting and doing their business. The COVID-19 has brought about the new challenge in the form of lockdown and social distancing. The business organization has undergone a dynamic shift in their roles. They are changing the roles, the functions, and the overall impact, and they have shaped their business scenario in a digitalized way. The need for a digital transformation from operating in a traditional cocoon is no longer an option. The sooner the shift happens, the higher is the chances of survival. So, to survive in this era, to survive in this scenario, the business organizations are adopting the digital transformation. As quickly they will adopt the digital transformation, as then it will be very helpful for them to adopt this situation. So these are my some of the views regarding the topic. So I want to thank you for giving me this opportunity. So I want to conclude here. Thank you. Dr. Pushpa Ramesh, Assistant Professor, Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur, Madhya Pradesh. Ma'am, I would like to invite you to share your views. Please take your mic. Okay, sir. Okay, sir. Sir, clear है voice? Yes, your voice is Hello? clear. Yes, it's very Okay. sufficient to. Okay, sir. Okay, thank you, sir. भवदिया इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोफेसर शिशिर पांडे सर को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर पुष्पा रमेश, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, माता गुजरी महिला महाविद्यालय जबलपुर से हूँ। एंटायर टीम, आपने जो आज ये टॉपिक रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वास्तव में हमारा जो व्यवसाय है, जो भी बिजनेस है, वो हमारे आसपास के वातावरण से निश्चय ही प्रभावित होता है, चाहे वो किसी भी तरह का वातावरण हो। विशेषतः नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। जी सर, क्लियर है सर वॉइस? हेलो, ओके सर, ओके। जी 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 सर, जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि यदि हम 17वीं शताब्दी के भारत को देखें, तो मैं कुछ पंक्तियां आपसे शेयर करूंगी कि नीलांबर परिधान हरित तट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है,
करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो हमारा भारत 17वीं शताब्दी का भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, मनुष्य भूल गया कि वो भगवान नहीं है। प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है हमको और प्रकृति को साथ लेकर चलना है। हमारे आसपास की जो नदियां हैं, जंगल है, वन है, हमारा आसपास का जो वातावरण है, आज आप देखिए इस पेंडेमिक के समय पर सभी प्रदूषण मुक्त हैं। आखिर क्यों? पहले ऐसा क्या होता था? निश्चय ही हम मनुष्यों ने प्रदूषण फैलाया और बिल्कुल प्रकृति के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि प्रकृति जब तक खली हरी भरी और बिल्कुल खुशहाल नहीं होगी, चिड़िया चहचहाएगी नहीं, तब तक हमारे बिजनेस के लिए अच्छा वातावरण कैसे मिलेगा? जो भी उद्योग धंधे और जो भी व्यापार और व्यवसाय हम कर रहे थे, उसका अवशिष्ट प्रवाहित करने में हमको जरा भी नहीं लगता था नदियों में कि नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इतने आदर से, इतने सम्मान से जो हमारी नदियां हैं, यहाँ तक कि गंगा जो उसको प्रदूषण मुक्त करने का जो अभियान छेड़ा गया, उसके पहले आप गंगा की स्थिति को यदि देखें तो विदेशी यदि आते हैं पर्यटन स्थल पर घूमने तो उसका जल पीकर बीमार पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? जैसा कि अभी इसके पहले राजेश रंजन सर ने कहा था कि निश्चय ही हमको प्रकृति को साथ लेकर चलना है और प्रकृति के साथ ही चलना है। वास्तव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारा बिजनेस तो बड़ा है, उसने हमारे बिजनेस को बढ़ाया है और कहीं ना कहीं आईटी को बिना अपनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जैसे हम ये वेबिनार्स कर रहे हैं, आप सभी ये विषय बहुत चिंतनीय है कि इसके पहले जब सेमिनार्स होते थे तो एक सेमिनार कराना और इतने पार्टिसिपेंट्स को जोड़ना बहुत कठिन काम होता था और उसमें ही कम से कम खर्चा यदि अपन देखें तो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। कोई उसमें अतिशयोक्ति या कोई आश्चर्य की बात नहीं होती थी। लेकिन आज ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम आप बैठकर यहाँ घर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानूंगी कि कभी भी फिजिकल जो आपकी प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज इतनी चर्चा चलती है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाए और बहुत से लोग शुरू भी कर दिए, विशेषकर जो स्कूल्स में बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। आप सोचिए बच्चों की आंखों पर कितना असर पड़ रहा है। जो फिजिकल जो प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ मेरा ये विचार है कि यदि हमको, जैसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, जान है तो जहान है, अब हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है जान भी और जहान भी। निश्चय ही हम जहान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमको जहान को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो ये कोरोना वायरस हमारे साथ कब तक चलेगा हम खुद नहीं जानते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हमको इसके साथ रहकर जीना पड़ेगा, इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम डूबता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस इसके लिए ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम उसका पालन करें, ताकि डिमांड और सप्लाई की जो श्रृंखला है, उसका जो चैनल है वो बना रहे। यदि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और हमारे व्यवसाय के लिए सही और अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा। इस कोरोना वायरस के समय बड़े उद्योगों को छोड़कर यदि अपन देखते हैं तो हमारे यहाँ के लघु और कुटीर उद्योग बहुत प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। तो यदि ये माने कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उसी स्थिति में लाना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने यहाँ काम करने वालों का यदि वेतन नहीं देंगे, यदि आपको वेतन नहीं मिल रहा है तो ये चैनल टूट
जाएगा, इस चैनल को हमको साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे ऊपर उठाएं। उसके लिए हमको स्वदेशी अपनाना होगा, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया को देखकर ही हमको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। आप इसकी शुरुआत हमको स्वयं अपने घर से करनी पड़ेगी। आपके घर में यदि छोटा सा बच्चा है और यदि वो टॉयज लेने के लिए आपसे जिद करता है, तो आप फटाफट मार्केट जाते हो और देखते भी नहीं हो और चाइनीज टॉयज या कोई दूसरी कंट्री की टॉयज उठाकर उसको लाकर दे देते हो, वो खुश हो जाता है। हमको बाल्यपन से ही अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि ये हमारे देश का है, ये हमारी धरती का है, हमको इसको अपनाना है, इसको लेकर ये खरीदना है और ये चीजें हमको नहीं खरीदनी है। तो वास्तव में कोरोना वायरस कब तक रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण वाकई में कम हुआ है। और यदि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ने हमको बता दिया कि मनुष्य तुम भूल गए हो कि तुमको धरती में कुछ समय के लिए भेजा गया है, तुम भगवान नहीं हो, भगवान हम हैं, जहाँ चाह वहां राह। वास्तव में हर मनुष्य को ये चीज, ये पंक्तियां याद रखनी चाहिए और रास्ते बनाने चाहिए कि किस तरीके से हम देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति विशेष अकेले कुछ नहीं कर सकता, संपूर्ण जन समुदाय को मिलकर काम को आगे करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो तो हमारे आसपास का वातावरण ही है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो, हम जंगल ना काटे, हम पौधे लगाएं। हजारों स्कीम्स निकाली जाती है कि करोड़ों पेड़ लगाओ, लाखों पेड़ लगाओ, लेकिन एक बार लगाने के बाद कोई झांकता भी नहीं है कि उसमें से कितने पल्लवित हुए और कितने मुरझा गए, कितने सूख गए। तो हर एक व्यक्ति के मन में ये बात होनी चाहिए कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। हर व्यक्ति को, चाहे वो कम आयु का हो, वृद्ध हो, युवा हो, अपने देश से प्यार, अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। और ये जो कोरोना वायरस है, अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति आज भी ठीक है। आज भी क्या आप मलेरिया से आपने मुक्ति पा लिया? आज क्या आपने जॉन्डिस से मुक्ति पा लिया? नहीं, उसके टीके बन गए हैं। कुछ समय लगेगा, हम इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी से मुक्ति पाएंगे। निश्चय ही हम सबको आगे साथ में मिलकर बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी और सहायता करें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू शिशिर पांडे सर को। Thank you so much, ma'am, for sharing your knowledge with us. Now, we are going to start a question. I would like to recall the speakers. I have some question on the behalf of participants. The first one is Mr. Ayush, Dr. Usha Pal, Sir, SCA PG, Jammu MP. The question is, sir, what will be the status of small traders after COVID-19? I'm repeating the question again. What will be the status of small traders after COVID-19? Hello. Hello. Are you hearing me? Rajesh, sir. Hello. Rajesh, sir. Sir, I'm able to hear. The question is, sir, what will be the status of the small traders after COVID-19? Sir, actually,
if we see small traders, when I say मैं मान के चलता हूँ कि they are part of our small and medium enterprise. Most of the small traders, they are either proprietorship basis or they are a limited partnership basis. They are not big companies. Basically, less than 1 crore, a lot of companies are there, and less than 10, many are there. So we all consider them to be small traders. The future is definitely good. One reason is that we are going to have more consumption is going to increase, and the Make in India aspect will be definitely helping each one of us. As a company also, I am pretty sure we will be able to work out with the smaller trader or small company. But more so, since lot of things people are made aware, we will be made more aware of hygiene, the personal protective equipment. So the professionalism will come into play. We should not and we must not remain ठीक है चलता रहेगा, वो कैसे भी करके कर देंगे, तो नहीं. अभी जैसे आप देख रहे होंगे जो छोटे मोटे शॉप्स हम लोग लेते हैं, वहां पर आप, मैं एक सिंपल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप मॉल में रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपको ग्लव्स में निकाल करके देगा समोसा, और आप अपने बगल में चले जाएंगे तो वैसे ही आपको दे देगा. अब वो भी हाइजीन को मेंटेन कर रहा है. सो कुल मिला जुला करके जो सेंटिमेंट की बात हम करेंगे, ये इसको इम्प्रूव करेगा लोगों के ऊपर में. आपको जब देखेंगे कि हाँ हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल ट्रेडर लीजिए या बड़े ट्रेडर लीजिए, या जो बहुत सारी जो कंपनीज आने वाली हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर में, इसलिए मैं इस बारे में विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि भविष्य उज्जवल है. हमको सेफ्टी और हाइजीन के साथ काम करना है, हेल्थ वाइज एज वेल एज सेफ्टी वाइज. जो HSE बोलते हैं इंडस्ट्री में, HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये एक कॉन्सेप्ट आया है, उसके हिसाब से काम करेंगे. भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा. Thank you, sir. And the second question is from the Gaurav Chaurasia, account executive. The question is, sir, can COVID affect on the education and student life? Sir, I couldn't get properly this question. Sir, I am repeating again. Can COVID affect on education and student life? Education and student life. Okay, so इसको आंसर देने से पहले मैं एक अपने बारे में बताना चाहता हूँ. मैं कोर्स कर रहा हूँ एक IIM रांची से, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जनरल मैनेजमेंट का. लास्ट ईयर एडमिशन लिया था. दिस इज फॉर एक्सपीरियंस. मोस्टली जो और यंग रहेंगे वो तो डायरेक्टली 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिट हो सकते हैं. हमारा सेशन होना था मई एंड में, जो एंड टर्म है, 5th टर्म है. बिकॉज ऑफ कोविड वो पोस्टपोन हो करके अभी वो सितंबर में हो रहा है. तो ये इम्पैक्ट हुआ है कि थोड़ा सा चेंज होगा. मैं अभी इस पे थोड़ा बिल्डअप करूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा. सेकेंड बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद में लास्ट ईयर तक था, दिल्ली भी पिछले साल आया हूँ, और बेटी मेरी अभी स्कूल जाना शुरू करी है. तो उनके लिए अभी वाइफ इज स्टेइंग इन हैदराबाद ओनली, मैनेजिंग एवरीथिंग. सो क्योंकि वो हुआ कि मंडे से उनका क्लास शुरू होगा हमारी बेटी का, तो उसके लिए अब लैपटॉप चाहिए. तो संडे को दोपहर में जा करके शी हैड टू बाय ए लैपटॉप कि भाई अब बेटी का सुबह सुबह क्लास उसको कराना है 9 बजे से, तो लैपटॉप चाहिए. यहाँ तक तो ठीक है, ये तो खैर हमने किया है. बेटी एक दिन लैपटॉप पे रही, दूसरे दिन देख रही है कि टीचर भी लैपटॉप में है, उसके फ्रेंड्स भी सब लैपटॉप में है. तो मम्मा को बोल रही है कि मम्मा व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई एवरीबॉडी इज ऑन लैपटॉप. सो ये इम्पैक्ट है. जो हमारा ट्रेडिशनल वर्किंग है हर चीजों में, चाहे आप वेब कोर्सेज को ले लीजिए, जो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में लोग बोलते थे अरे ऑनलाइन कोर्स नहीं करना चाहिए, वो चीजें अब हट रही हैं. अब हम ऑनलाइन चीजों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं.
और ये आगे बढ़ेंगे। इसका एक तरह तरह का म्यूटेशन होता रहेगा, हर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होते रहेंगे, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। जो हम प्रोग्राम करेंगे या हम आगे करेंगे या हम जो पहले करते हैं इंप्रूवमेंट होगा। तो जो कोविड है एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ को इम्पैक्ट इस सेंस में करेगा कि ये हमको बहुत डेटा देगा, क्योंकि हमारे पास में एक्सेसिबिलिटी होगी, लोग इसके ऊपर में ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर में काम करेंगे, तो ये होगा। मे बी 6 months to 1 year जो बहुत स्मॉल चिल्ड्रन का जो सेगमेंट है उसको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मे बी आफ्टर 1 year 2 year डाउन द लाइन थोड़ा थोड़ा वहां पर नॉर्मलसी आएगी। बट जो प्रोफेशनल पढ़ाई जो हम करते हैं, बहुत तरह के कोर्सेस है, मेरा भाई बता रहा था कि उन्हें बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी हैं जो एक हफ्ते 2 हफ्ते वाले होते हैं, वो कोर्स कर लिया है। So it will definitely help. It will change. It will be a sea change. My view is, and I am experiencing it. I am experiencing it. This is going to impact, and it will impact positively. Everything will have the flip side of it. But ये अच्छा होगा. हमको इसको उस तरीके से देखना है, उस तरीके से एक्सपीरियंस करना है इसको. Thank you, sir. And Thank you. Next question is, sir, from the Dr. D.P. Singh, Director SRMT BKT Lucknow. The question is, sir, what will be the impact business environment, if any type, after COVID-19? सर सिर्फ हम कोविड-19 की बात करेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये फर्क पड़ेगा कि जो काम हम ऑफिस जाए बिना कर सकते थे या कर सकते हैं वो हम घर पे बैठ के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंजीनियरिंग का जो वर्क है, जो कि हम मोस्टली सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, चाहे आप ऑटोकैड ले लीजिए या उस तरह का काम ले लीजिए, वो हम अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ में। लेकिन जो हमारा रिटेल सेगमेंट है, जैसे आप मॉल्स की बात करिए या जो सिंगल ब्रांड आउटलेट्स की बात करिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करिए, कंस्ट्रक्शन की बात करिए, वहां पर अब अवेयरनेस आ रहा है लोगों में। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में काम कर रहे हैं। और मेरा एक अगेन पर्सनल व्यू है हमारे कि पहले हम जो 8 घंटे में काम करते थे उसमें ब्रेक होता था, लंच ब्रेक, टी ब्रेक होता था, और अब हम जो 4 और 5 घंटे में जो काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई है। सो उस डायरेक्शन में अगर हम इसको देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो विल नॉट गेट इम्पैक्टेड एडवर्सली इन द लॉन्ग रन। जैसा कि बेन के स्टडी में भी अभी हमने देखा है कि resilience has to be there, which will be definitely available when our leaders in the respective industry deliberate on it and prepare strategies कि वो उस तरीके से हम इसको implement कर सके। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको इसको कहते हैं ना कि टेक द बुल बाय हॉर्न। सो वी हैव टू गो इनटू इट एंड सॉर्ट आउट द मैटर। बिजनेस environment will improve. It will take some time, definitely 2 quarters it will take to come back to normalcy and near normalcy, I would say, rather not completely, and it will rebound. We are resilient enough. इंडिया के अंदर में इतना बड़ा मार्केट है कि आपके पास में बिजनेस हैज टू कम बैक, नो डाउट। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल आंसर टू द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच सर। Now we are going to start the next session. I would like to invite Dr. Shailesh Dwivedi, Assistant Professor, Department of Commerce, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. But before starting this session, I would like to give a brief introduction of Dr. Shailesh Dwivedi, sir. He is currently working as Assistant Professor in Department of Commerce, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, a Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. Prior to this, he was working as a financial education resources person in SEBI and National Center for Financial Education for 10 years. He also worked as a managing editor in the South Asian Journal of Commerce and Management and associate editor in the International Journal of Financial Footprints. He has a publication of 2 books, 15 research papers, and 6 chapters in book.
He has attended 24 international and national seminars and conferences and dozen of the workshops. He has completed his MCom and PhD degree from Banaras Hindu University, Varanasi. His area of research are in the field of finance and accounts. Okay, now I would like to invite Dr. Shailesh Dwivedi, sir. Are you hearing me, sir? Please, sir. Continue. Yes. Okay. Thank you so much. Welcome, sir. First, I would like to give very thanks to the organizer of this webinar and the whole team of the Bhavadiya Institute of Management, Bhavadiya Educational Institutions, Bhavadiya Group of Institutions, especially Dr. Shishir Pandey. Before going to start my valedictory speech, I would like to share I would like to quote my teacher. When I was in class 11, my one school teacher told me that after 30 years from now, it won't matter what shoes you wore, how your hair looked, or the jeans you bought. What will matter is what you learned and how you used it. लगभग आज से 30 साल मेरे ख्याल से हो ही गया होगा. अगर 19 I was class 11 in 97-98. तो ये बात मैंने इसलिए कहा है कि आज वो 30 साल 32 साल के बाद वो समय ऐसा आ गया है कि हमने क्या सीखा है अभी तक. When Indian economy was opened in 1991, July 1991, then liberalization, privatization and globalization was started. After that, implementation of LPG, जो अभी बिजनेस एनवायरनमेंट और बाकी चीजों की राजेश जी और बाकी और लोगों ने भी आप लोगों से शेयर किया होगा, वो सारा उसके डीमेरिट्स, उसके सारे जो इफेक्ट, चाहे आप पॉजिटिव इफेक्ट लीजिए चाहे नेगेटिव इफेक्ट लीजिए, सब आपको दिख रहा था. और आज वो समय आ गया है कि हमें उन सभी चीजों को छोड़ करके फिर से नए चीजों पे नए तरीके से सोचने की जरूरत है. अब कैसे सोचना है, ये आज हमारा नया बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो नए तरीके से हमें सोचने की जरूरत है. आई एम गोइंग टू give one example how our business environment is going to change. एक आमों का एक राजा बोला जाता था जो महाराष्ट्र में जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती थी, अल्फांसो, जिसको अभी तक हम आम का राजा मानते थे. आज महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट हैं, इसलिए जितने भी उसका अल्फांसो का एक्सपोर्ट होता था और कोविड-19 की वजह से जितने भी एक्सपोर्टर थे उन सारे लोगों ने उस आम को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया. तो अभी आम का सीजन है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इंडिया एंड प्रोड्यूसर ऑफ आम हैज डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट अ न्यू वैरायटी ऑफ आम, जो कि कभी कहीं मिला नहीं. वो एक मैंगो जो कहाँ मिला, सबसे ज्यादा पाया जाता है वाराणसी में. वाराणसी का एक फेमस आम है बनारसी में, जिसको लंगड़ा आम बोलते हैं, और उसका प्रोडक्शन अभी कोविड-19 में पिछले महीने स्टार्ट हो गया. प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, उसको बनारस से लखनऊ लाया गया, लखनऊ से सीधे दिल्ली, और दिल्ली से उसका उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा. कहाँ? दुबई, सऊदीया, जहां सबसे ज्यादा उसका
उसको इंपोर्ट करने की, जहाँ के लोग ज्यादा उसको इंपोर्ट करते हैं। ये नए तरीके का बिजनेस है, यानी कि कोविड-19 ने बिजनेस एनवायरनमेंट को एक तरह से चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लोग ऐसा बोलेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं, वो क्या चेंजेस आया है कि टेक्नोलॉजी को लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने जितना ज्यादा हमारे लिए रास्ते को आसान किया है, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे उतने ज्यादा स्ट्रांग हैं? शायद नहीं। एक सर्वे आपके सामने रखना चाहूंगा। उस सर्वे में ये बताया गया है कि IAMAI एंड निल्सन इंडिया इंटरनेट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल भारतीय जनसंख्या का केवल 36%, जो कि 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और ये लोग इंटरनेट यूज करते हैं। हालांकि इंटरनेट की पहुंच में भी एक रुकता नहीं है। सिर्फ गांव में 27% गांव में, और जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें टोटल 51% एरिया, शहरी एरिया में ही अभी तक इंटरनेट की पहुंच है। भारत में व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के टोटल जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो टोटल हैं अभी तक 400 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग शहरी आबादी के हैं। गांव में अभी तक उसकी पहुंच नहीं है। NSSO के 2017-18 के एक सर्वे की मैं बात करता हूं, जिसमें कहा गया है कि भारत की 15 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 45% आबादी या तो अनपढ़ है या सिर्फ औपचारिक प्राथमिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन ही वो प्राप्त कर पाई है। अगर हम रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 70% लोग, 70% पीपल्स आर आइदर इलिटरेट या किसी तरह से वो साक्षर हो पाए हैं। ये हमारे एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, अभी जो राजेश रंजन जी बता रहे थे आप लोगों को, कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट जो मैं आपको बताऊं, तो डिमेरिट ये है कि ऑनलाइन वीडियो आप प्ले कर देते हैं, और प्ले करके और उसको म्यूट कर दिया, चल रहा है, वीडियो प्ले हो रहा है, चल रहा है, कोर्स कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो 4 वीडियो आपने देखा, 4 वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट आपके घर आ जाता है। लेकिन आपने वीडियो प्ले कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में जिस बंदे ने उसको देखा वो उससे कितना सीखा? प्ले करने के बाद वो कहीं चला जाता है, चला गया, दोस्तों से बात कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, खाना घर में, अगर फीमेल है तो खाना वाना बनाना इस सब में लगे हुआ है, यहाँ कोर्स चल रहा है उनका। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में होता है, तो फॉर्मल एजुकेशन एक टीचर, एक स्टूडेंट और क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबको पूरी तरह से वो वॉच करता है और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में वो सोचता है। नो डाउट टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे एक सोफिया आई थी, बेंगलोर में एक स्कूल था, पब्लिक स्कूल, जिसमें एक सोफिया नाम की रोबोट थी, और उसने एक टोटल क्लास को एंगेज किया था, 1 घंटे उसने क्लास को पढ़ाया था। रोबोट ने पढ़ा दिया, लेकिन क्या जो इमोशनल टच की जिसको हम बात करते हैं, वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इमोशनल रिलेशन होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर स्टूडेंट को इमोशनली उसको हैंडल करने की बात की जाएगी, तो क्या वो रोबोट उसको हैंडल कर सकता है? क्या वो टेक्नोलॉजी उसको हैंडल कर सकती है? हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन
उसका ड्रॉबैक भी है। आप 1 घंटे कंटिन्यू अगर किसी भी मोबाइल पे बैठ करके कंटिन्यू आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने बैठ करके आप क्लास ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं या काम कर लीजिए 1 घंटा, इवन मूवी देख लीजिए, तो शायद आपके सिर पे, आपके आंखों पे कहीं ना कहीं उसका असर दिखता। टेक्नोलॉजी एक हेल्प कर सकता है। कंप्यूटर्स में हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न, बट इट कैनॉट मेक द स्टूडेंट लर्न, वो नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम अगर बात करते हैं, पहले हम चिट्ठी लिखते थे जो 15 महीने 15 दिन में जाता था। इवन मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ शेयर इशू करने का। पहले शेयर इशू होता था, आप एप्लीकेशन भरते थे, वो जाता था बाई पोस्ट, फिर शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम से इशू होता था, घर में आता था, लगभग 3-4 महीने इसमें लग जाते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से जब से डीमैट अकाउंट ओपन करना का स्टार्ट कर दिया, सेबी ने कंपलसरी कर दिया, और जब आप इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप सुबह परचेज करने की एंट्री करेंगे, विद इन आवर, विद इन 2 डेज, विद मैक्सिमम आपके अकाउंट में शेयर सर्टिफिकेट या जो भी है शेयर की आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जितना ज्यादा हमारे लाइफ में इंप्रूवमेंट किया है, कहीं ना कहीं उसका डीमेरिट भी है, उसका ड्रॉबैक्स भी है। हमें इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, और वो कोऑर्डिनेशन कैसे बन सकता है? हमारे देश को इंप्रूव करने से। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं टेक्नोलॉजी के बेस पे। छत्तीसगढ़ में मैं हूं, छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जगह है, एक जिला है बस्तर। आप लोगों ने नाम सुना होगा केवल एक चीज के लिए, और वो है ट्राइबल एरिया। और ट्राइबल में क्या है? माओवाद, नक्सली। सबसे ज्यादा आप लोगों ने केवल ये न्यूज में हमेशा रहता है कि नक्सली अटैक हुआ, लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, अगर हम प्राकृतिक जो हम मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट अगर कहीं मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी बस्तर में। और वहां के लोगों ने, वहां के लोग, महिलाओं ने एक समूह बना करके, एक ग्रुप बना करके उन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट करने का, जो पहले वो मैनुअल काम करते थे, टेक्नोलॉजी यानी कि कोविड आने के बाद उन लोगों ने उसको टेक्नोलॉजी का उस काम में यूज करना स्टार्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस काम को करना स्टार्ट किया, और आज वो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को पूरे देश में लगभग हर स्टेट में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये कोविड के बाद से आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। अभी ट्विटर ने, गूगल ने कह दिया है कि यू कैन वर्क लाइफ लॉन्ग वर्क फ्रॉम होम। लेकिन जो पुराने, जो बाकी बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर सकते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी पे निश्चित रूप से कोविड का बहुत ज्यादा असर हुआ है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहा जाए तो है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको सॉर्ट आउट करके बहुत जल्दी ही, बहुत ही जल्द, मैं तो ज्यादा टाइम नहीं बोलता हूं, मैं ज्यादा ये मानता हूं कि हार्डली दिवाली, अक्टूबर से नवंबर वी कैन ओवरकम, निश्चित रूप से। और कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम लोग मिलके काम करते, कुछ नई चीज करेंगे, सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इस पे हम विजय पा सकते हैं। लास्ट में एक बात मैं बोल के खत्म करना चाहता हूं। आई थिंक टाइम इज ओवर। इंसानियत की, आइए हम सब मिल करके इंसानियत की एक ऐसी समा हम जलाएं, इंसान जिसकी लौ में एक साथ जगमगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for sharing your valuable experience with us. Now, again, a very good evening to the Honorable Chief Guest, Professor Jiten Pratap Singh, respected Vice Chancellor, Professor Vinay Pathak, sir, Abdul Kalam Technical University, Vice Chancellor
Ram Manohar Lohia, Awadh University, Professor Manoj Dixit, our all respected speakers, Dr. Jitendra Kumar Rai, Mr. Rajesh Ranjan, Dr. Shailesh Dwivedi. And also, I'm very grateful to our MD, sir, Vishalal Verma, Secretary, Dr. Odesh Verma ji, Chairman, Engineer P.N. Verma, sir, Principal, BGI, Dr. Rajni Srivastava, Principal, Hodhiya Group of Pharmaceutical Science, Dr. Saha, Director, Bodhi Institute of Business Management, Dr. Sisil Pandey. First of all, I would like to thank Director Sir. You gave me an opportunity to speak on this auspicious occasion, and it's a matter of honor for me. On the behalf of the entire institute, I would like to thank the Honorable Chief Guest for your presence and inspiring words. I thank you from bottom of my heart. I want to express my heartfelt gratitude to all the guests present today. Thanks for your blessing. Thanks for your sharing your knowledge and experience with us. I am heartily very grateful to you. Now I would like to invite Director Group of Business Management, Dr. Sisil Pandey, for winding up this program. Director, sir, please continue. Thank you, Manoj sir. Now I would like to thank all the participants who have patiently participated in this webinar from 1:30 p.m. And the special thanks to our speakers, Dr. Jitendra Kumar Rai sir and and Mr. Rajesh Ranjan sir, and some other participants who have presented, Dr.